چڑیا بہن، میں اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں، پلیز مجھے اپنا ہار دے دو۔ میں نے اپنے میکے میں بڑی بڑی چھوڑی ہوئی ہے، اگر بن ٹھن کر نہ گئی تو میرا سارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ گوری بہن، ایسے جھوٹ کی بناوٹ ہمیشہ نہیں چلتی، جھوٹ ایک نہ ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے۔ چڑیا بہن، آپ میری پڑوسن ہو اس لیے آ گئی، آپ تو مجھے باتیں ہی سنانا شروع ہو گئی۔ ہار لے جائیں آپ، میں تو ایسے ہی بات کر رہی تھی۔ پھر گوری کوی چڑیا سے اس کا ہار ایک دن کے لیے ادھار لے کر چلی جاتی ہے۔ گوری، ہار لے آئی ہو؟ ہاں، ہار تو لے آئی ہوں، مگر کالو جی میں اپنے میکے والوں کے لیے کھانے کے لیے کیا لے کر جاؤں گی؟ میں بیری کے پیڑ سے بیریاں توڑ کر لا دیتا ہوں، وہ لے جانا۔ کالو شرم کرو، بیریاں بھی کوئی لے کر جانے والی چیز ہے؟ تو پھر کیا کروں میں؟ کالو مجھے کم کی دکان سے 2 کلو مٹھائی ہی لا دو۔ وہ مٹھائی ادھار نہیں دیتا۔ کالو جی میرے سندر پتی اپنی پتنی کی اچھا پوری نہیں کرو گے؟ میں جاتا ہوں اور منت کرتا ہوں کم کی، اگر مان گیا تو۔ پھر کالو کوا کم پکشی کی مٹھائی کی دکان پر چلا جاتا ہے۔ یار کم، مجھے 2 کلو مٹھائی ادھار دے دو، میں 2-4 دن میں پیسے دے جاؤں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مہنگائی بہت ہے، آپ نے تو پہلے ہی میرے 20 روپے دینے ہیں، میں سارے پیسے ایک ساتھ ہی دے دوں گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی۔ پھر کم اسے 2 کلو مٹھائی ادھار دے دیتا ہے، جسے لے کر کالو کوا خوشی خوشی گھر چلا جاتا ہے۔ مٹھائی تو لے آیا ہوں، کم مان نہیں رہا تھا، بہت مشکل سے منایا ہے، میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ نہیں، میں نے وہاں جا کر کئی جھوٹ بولنے ہیں، اور تمہارے سامنے مجھے جھوٹ بولنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ پھر آٹو آ جاتا ہے اور گوری کوی اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور آٹو میں بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد گوری کوی اپنے میکے والے جنگل پہنچ جاتی ہے۔ گوری کی ماں گھر کے باہر ہی بیٹھی گوری کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی میری بیٹی؟ ہاں ماں، چھوٹی نہیں پہنچی ابھی تک؟ وہ تو کب کی آئی ہوئی ہے، چلو گھر چلو، وہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر گوری کوی اور اس کی ماں گھر کے اندر چلی جاتی ہیں۔ چھوٹی، میں تمہارے لیے دیسی گھی کی مٹھائی لائی ہوں، میرے سسرال والے بہت امیر ہیں، ہم روز ایسی سوادشٹ مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ پتی جی دیکھ لو، گوری دیدی کا پتی اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور آپ کبھی میرے لیے مٹھائی نہیں لے کر آئے۔ میں نے تمہیں اچھا گھر دیا ہوا ہے رہنے کو، اور تمہیں کیا چاہیے؟ لو جی چھوٹی، جیجا جی تو کیول گھر ہی دے سکتے ہیں تمہیں۔ جیجا جی یہ دیکھو، 1 لاکھ کا ہار ہے جو میں نے پہن رکھا ہے، ابھی کل ہی میرا پتی میرے لیے لے کر آیا تھا۔ پھر وہ سب مٹھائی کھاتے ہیں۔ ماں، میں یہ باقی کی مٹھائی پڑوسیوں کو دے آتی ہوں اور ان سے مل بھی آتی ہوں۔ پھر گوری مٹھائی لے کر پڑوس میں جاتی ہے۔ چیل دی کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ گوری تم کب آئی ہو؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ دیدی کیا نوکر نہیں ہے آپ کے گھر میں؟ نہیں گوری، کیا تمہارے پتی نے تمہیں نوکر رکھ کر دیے ہوئے ہیں؟ 1 نہیں 2 میرے گھر میں 2 نوکر ہیں جو میرے گھر کا سارا کام کرتے ہیں، بہت امیر ہے میرا پتی، میں تو پانی بھی اپنے نوکر سے ہی لے کر پیتی ہوں۔ گوری یہ ہار کہاں سے لیا؟
बाजार से 1 लाख का आया है। फिर ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ने के बाद गोरी वहाँ से बुलबुल के घर जाती है। गोरी, तुम कब आई हो? मैं माँ से मिलने आई थी। बहुत अमीर है ना मेरा पति, वो मुझे हवाई मोटर पर छोड़कर गया था। गोरी, क्या काम करता है तुम्हारा पति? उसका अमरूदों का बाग है और अंगूरों का भी। बड़ा व्यापार है मेरे पति जी का, इसीलिए तो मुझे कल ही 1 लाख का हार लेकर दिया है। गोरी तो ऐसे छोड़े जा रही थी कि रुक ही ना रही थी। फिर शाम हो जाती है और गोरी अपनी माँ के घर चली जाती है। गोरी दीदी, तुम्हारी शादी माँ ने बहुत अच्छी जगह की है। मुझे तो गरीबों में ही बिहा दिया माँ ने। हाँ छोटी, अपनी अपनी किस्मत होती है। मैं तो ऐश करती हूँ, ऐश। फिर दूसरे दिन गोरी वापस जाने की तैयारी करती है। चील और बुलबुल भी गोरी से मिलने आई हुई थीं। गोरी, आपकी मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी। मजा ही आ गया मिठाई खाकर। हमारी गोरी की शादी बहुत अमीर परिवार में हुई है। गर्व है हमें अपनी गोरी पर। अब मैं चलती हूँ माँ, मैं फिर किसी दिन आऊंगी और सबके लिए एक एक साड़ी भी लाऊंगी। मेरे लिए गुलाबी रंग की लाना साड़ी। फिर गोरी कवि वहाँ से वापस हो लेती है। कालू, कालू, मेरे जीजा जी तो मेरे हार की तरफ ही देखे जा रहे थे। और तुम्हारी बहन? छोटी तो रो रही थी कि माँ ने मेरी शादी गरीबों में क्यों की। अब जाओ और चिड़िया का हार भी वापस कर आओ, और फिर कुमकुम की मिठाई के पैसे भी देने हैं, नहीं तो वो मुझे वहाँ से गुजरने नहीं देगा। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और लाल तोता गोरी के घर आता है। गोरी, मैं तुम्हारे मैके वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी बहन अपने पड़ोसियों के साथ कल तुमसे मिलने आ रही है। ऐसा कहते हुए लाल तोता तो चला जाता है, मगर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। उसने बड़े बड़े झूठ जो बोले हुए थे अपने मैके वालों के पास। अब सबको पता चलेगा कि तुम कितनी अमीर हो। कालू, कुछ करो प्लीज, मेरी इज्जत का मसला है, कुछ करो। फिर कालू और गोरी तोते और कबूतर के पास जाते हैं। तोते, मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए तुम और कबूतर मेरे नौकर बन जाओ। यूं क्यों गोरी, आप तो हमारे दोस्त हो, आपसे झूठ कैसा? गोरी ने अपने मैके में जाकर बड़ी बड़ी छोड़ी हुई है, और कल गोरी की बहन अपने पड़ोसियों को साथ लेकर गोरी से मिलने आ रही है। बस थोड़ी देर की तो बात है, मान जाओ मिट्ठू। फिर ऐसे तोता और कबूतर गोरी का नौकर बनने के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर के समय चीलदी, बुलबुल, गोरी की बहन और गोरी का जीजा जी सब गोरी के घर पहुंच जाते हैं। देख लें आप सब, मैंने कोई झूठ बोला था। ये दोनों मेरे नौकर हैं। जाओ तोते नौकर, मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। फिर तोता चाय लेने चला जाता है। गोरी बहन, वो मिठाई घर में है? मैं अभी मंगवा लेती हूँ। कालू, जाओ और कुमकुम से मिठाई तो लेकर आओ। अभी गोरी ने ऐसा कहा ही था, कुमकुम गोरी के घर आ जाता है। कालू, पूरे 3 दिन हो गए तुमने मुझसे उधार मिठाई ली थी। अब जल्दी से मेरे पैसे दो, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। ये सुनकर सब मेहमान गोरी की तरफ देखने लगते हैं। क्या गोरी दीदी, क्या आप मिठाई उधार लेकर गई थी? कुछ अमीर बख्शी ऐसे ही उधार करते हैं।
चिड़िया बेचारी क्या जानती थी कि गौरी के घर में कौन आया हुआ है। वो भी अपना हार लेने आ जाती है। गौरी बहन, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मेरा हार तो वापस कर दे। पीछे से कबूतर बोलता है। गौरी, अब हमारे नौकर बनकर नाटक करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा सारा झूठ पकड़ा गया है। गौरी तो ऐसे चुप थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो, और वो सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाता है। आजा आजा चिड़िया, जल्दी से आजा, आज मैं तुम्हारे सारे ही पैसे छीन लूंगा। कालू कौवा बहुत बदमाश था। किसी भी गरीब और कमजोर पक्षी को देखकर उससे जो भी होता सब छीन लेता। आज मैं बाजार से अपने बेटे की दूध और जलेबी लेकर जाऊंगी। ठंडे ठंडे मौसम में मेरा बेटा दूध जलेबी खाकर बहुत खुश होगा। मम्मा चिड़िया अपने पैसों की पोटली लिए ऐसा सोचते हुए जा रही थी, जब उसे दुष्ट कालू कौवा रोक लेता है। अगर यहाँ से एक पंख भी आगे बढ़ी तो अभी जान से मार दूंगा। लाओ अपनी ये पोटली, मुझे दो। इसमें मेरी मेहनत मजदूरी की कमाई है, मैं तुम्हें अपनी कमाई क्यों दूं? ऐसा सुनकर कालू कौवा चिड़िया को मारना शुरू कर देता है और चिड़िया से रुपयों की पोटली छीनकर भाग जाता है। बदमाश कालू कौवा मेरे रुपए छीन कर ले गया। मैंने सोचा था कि आज अपने बेटे के लिए दूध जलेबी लेकर जाऊंगी। फिर चिड़िया खाली पंखी वापस चली जाती है। मम्मा, आज फिर सूखा दाना? आपने तो कहा था कि आज आप मेरे लिए कुछ स्पेशल लेकर आओगी। वो गंदा कौवा मेरी सारी कमाई छीन कर ले गया। मैं फिर किसी दिन अपने बेटे के लिए दूध जलेबी लेकर आऊंगी। ये लो पक्षी रुपए, और मुझे गरम गरम जलेबी दे दो। कौवा चिड़िया से छीने हुए पैसों से मजे करता है। बुलबुल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरे घर के आसपास से फूल ना तोड़ा करो। कौवे भैया, मैं इन फूलों का रस निकालकर बीमार पक्षियों का इलाज करती हूँ। तो फिर मुझे क्या बता रही हो? मैं कौन सा बीमार हूँ? भागो यहाँ से। अगर मैं ये फूल नहीं लेकर जाऊंगी तो दूसरे पक्षियों का इलाज कैसे करूंगी? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कालू कौवा बड़ी लाठी उठाकर बुलबुल की पिटाई शुरू कर देता है। शोर सुनकर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। छोड़ छोड़ कालू, बुलबुल को क्यों मार रहे हो? इसने मुझे मारा, इसने मुझे बहुत मारा। अगर कभी ये कौवा बीमार हो गया तो मैं भी इसे दवा नहीं दूंगी। मैं कभी बीमार नहीं हूँगा, चल भाग यहाँ से। कालू, बुलबुल हम सब पक्षियों की सेवा करती है, हमें मुफ्त दवा देती है। आपने बुलबुल को मारकर अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे सब पता है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज फिर से चिड़िया को अपनी तनख्वाह मिली थी। आज मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ। अगर वो कौवा रास्ते में मिल गया तो वो फिर से मेरी तनख्वाह मुझसे छीन लेगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया रास्ता बदलकर अपने घर के लिए उड़ती है। वो बहुत डरी हुई थी। वो डरते डरते जा रही थी कि सामने कालू कौवा फिर से आ जाता है और उसे रोक लेता है। बताओ, अब सीधे से ये थैली मुझे दोगी या उस दिन की तरह मार खा कर दोगी? चिड़िया तो कौवे से बहुत डरती थी। नहीं नहीं कौवे, मुझे ना मारना, मैं थैली तुम्हें दे देती हूँ। चिड़िया अपनी पैसों वाली थैली फिर से कालू कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है।
कालू, पक्षी तो सारे ही तुमसे डरते हैं, मगर ये चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही डरती है, कमजोर है ना बेचारी। हो हो। दूसरे पेड़ पर नागू सांप बैठा ये सब देख रहा था। इस कौवे ने आज फिर उस चिड़िया से उसकी कमाई छीन ली है। इसका जुल्म हर दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे अब इसका कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरे दिन चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी कि वहाँ नागू सांप आ जाता है। चिड़िया, मैंने सब देखा था। वो कौवा कैसे तुम्हारे पैसे छीन लेता है। वो बहुत बदमाश हो गया है। नागू सांप भैया, मैं जब भी अपनी तनख्वाह लेकर आती हूँ वो मेरे पैसे छीन लेता है। अगर ना दूँ तो बहुत मारता है। तो फिर तुम ऐसा करो, आज रुपयों की जगह मुझे थैली में डाल लो और फिर मैं देखता हूँ वो कालू कौवा कैसे कमजोरों पर जुल्म करता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया नागू सांप को अपनी थैली में डाल लेती है और कौवे की तरफ जाती है। वाह वाह, आज तो शिकार चलकर ही मेरी तरफ आ गया है। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कौवे भैया, मैंने सोचा मेरी कमाई तो आप छीन ही लोगे, मैं खुद ही आपको दे आती हूँ। ये हुई ना बात। तुम बहुत सियानी हो चिड़िया। अगर ऐसे ही मुझसे डरती रहोगी तो मेरी मार से बची रहोगी। चिड़िया कौवे को वो नागू सांप वाली थैली देकर वहाँ से चली जाती है। चलो, आज मैं चिड़िया की कमाई से गरम गरम समोसे खाता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। समोसों की दुकान पर जाकर कालू जैसे ही उस थैली को खोलता है तो नागू सांप कालू कौवे के चेहरे पर अपना डंक मारता है। मैं मर गया, मैं मर गया। इस थैली में खतरनाक सांप कहाँ से आ गया। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब ना रहोगे तुम और ना करोगे कमजोरों पर जुल्म। कोई मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूँ। मेरी सांस रुक रही है, कोई तो मुझे बचाए। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल के घर की तरफ जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे नागू सांप ने डस लिया है। जल्दी से मुझे जहर दूर करने वाली दवा दे दो। नागू सांप ने बहुत अच्छा किया जो तुम जैसे जालिम को डस लिया। भागो यहाँ से और याद करो वो दिन जब तुमने मुझे मारा था। बुलबुल, मैं मर जाऊंगा। कल क्या मरते हो, अभी मर जाओ। तुम तो कहते थे कि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। अब पता चला काले कौवे कहीं के। चल भाग, मेरे घर में ना मर जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो अपने टूटे हुए घोंसले में जाकर लेट जाता है और मरने का इंतजार करने लगता है। अगर कल मैंने किसी पक्षी के साथ अच्छा किया होता तो कोई आज मेरी भी मदद करता। अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में ही मर जाता है और सभी पक्षी खुश थे क्योंकि वो सबको ही मारता था। आज तो चिड़िया ने भी अपने बेटे के लिए दूध और जलेबी ले ली थी क्योंकि अब उसके पैसे छीनने वाला कोई नहीं था। मम्मा, मुझे दूध जलेबी खाने का बहुत मजा आया। मम्मा, वो कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हर बार आपके पैसे छीन लेते हैं। बेटा कुकू, जो दूसरों के साथ बुरा करता है तो हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। नागू सांप ने उसे डसकर मार दिया है। मम्मा,
अम्मा, सच हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि बुराई का अंत बुरा ही होता है।